So we are starting this topic straight lines, and I'm starting with the first part, that is what is the meaning of ordered pair. Ordered pair means representation of two components in the format x comma y using first bracket, but the first component represents what? Abscissa. The second component represents ordinate. Now this ordered pair graphically represents a point. Graphically represents a point, we can say. Is this clear? Every ordered pair graphically, what does an ordered pair graphically represents? It represents a point. On a plane, plane means surface called XY plane. Alright, called XY plane. Is this clear? Here we find that this is the origin where, in order to represent this point on this plane, we first of all represents ये जो पहला वैल्यू है ये क्या डिनोट करते हैं? ये कोऑर्डिनेट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस ऑर्डर पेयर को ग्राफिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? और कोऑर्डिनेट. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट where the first component represents abscissa, the second component represents ordinate, where you all know that origin से x axis मतलब horizontal axis and vertical axis मतलब y axis. दोनों जहां पे intersect करता है that is origin and they are mutually perpendicular to each other. origin से अगर हम लोग rightward मूव करेंगे x axis पे, so हम लोग इसको पॉजिटिव यूनिट से मेजर करते हैं. और यहां से हम नेगेटिव, अगर हम लेफ्टवर्ड मेजर अगर हम बढ़ेंगे, इफ आई मूव लेफ्ट हैंड साइड इट इज मार्क्ड विथ नेगेटिव साइन. Similarly, upward positive sign and downward negative sign. Clear? Vertically upward positive, vertically downward negative. Now let us take an example. Suppose we have a point 2 comma 3. What is the meaning of point 2 comma 3? How do we represent a point 2 comma 3? In order to represent this point 2 comma 3 from the origin, your initial position is always at the origin. And from origin, you are going to move, listen carefully, you are going to move 2 units horizontally rightward. And then from this position, you are going to move vertically upward. How many units? 3 units. And so we will represent a point 2 comma 3 where you know that 2 means the abscissa, y means the ordinate, second component is the ordinate, where graphically the first component represents the movement along x-axis, second component represents movement along y-axis. Now also you must understand this way that abscissa means the distance of that point from the y-axis, and ordinate means the distance of this point from the x-axis. So if I ask you, what is the distance of this point from the x-axis? It means what I am saying. I am saying what is a vertical movement. तो बताओ तो यहाँ से vertical movement कितना है? 3 units. अगर मैं तुमसे ये पूछूं, what is the distance of this point from the y-axis? मतलब यहाँ से इसका कितना horizontal movement हुआ है? 2 units. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का distance is equal to abscissa, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, राइट? एंड डिस्टेंस व्हेन आई से प्योरली if I use this word distance means perpendicular distance. It is perpendicular distance from this point to this line. There are many paths, path, रास्ता, बहुत सारा रास्ता है ज्वाइन करने का, बट मैं कौन से डिस्टेंस का बात कर रहा हूं, कौन से रास्ता का डिस्टेंस का बात कर रहा हूं? वो रास्ता का डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, वो रास्ता का डिस्टेंस y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है. आई होप यू आर गेटिंग. आई थिंक या एवरीवन समझ में आया? तो ये पॉइंट को समझ में आया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट an ordered pair 2 comma 3 is not same as 3 comma 2, because you know that every ordered pair graphically represents a point. So 2 comma 3 is a point, 3 comma 2 is another point. I hope it is clear, everyone. Now the second topic which you must understand in this part is reflection. So these things you all have done in class 10, I guess. And then what is the meaning of reflection? ध्यान देना एक बार. अगर हम ये बात करें रिफ्लेक्शन का,
let's take again the same point, that is 2 comma 3. Who can tell me what is the reflection of this point in x axis? इस point को इस line से, that is x axis से reflect करे. Who can tell me what is the new coordinate of this point? Yes. Yes, it is 2 comma. Yes, absolutely correct. Because see, the distance along x-axis will be same. That is 2 unit. Distance along y-axis will be also same. But here the direction is upward. Here the direction is downward. So that's why I'm going to represent it with 2 comma minus 3. Now what change you are finding? किसी भी पॉइंट को अगर हम x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होता है. चेंज का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ साइन. समझ में? प्लस है तो माइनस. इस पॉइंट को वापस से एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा. कैरिंग माय पॉइंट? अब इस पॉइंट को अगर मान लो मैं वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूं तो कोई बता सकता है क्या चेंज होगा? व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट? यस, it is minus 2 comma 3, because if you find out, if you reflect this point in y axis किसी भी पॉइंट का क्या चेंज होगा? डिस्टेंस सेम रहेगा, बस कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन चेंज होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग along x axis राइट साइड में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब it will be minus 2 comma 3. All right. Now tell me, what is the new coordinate of this point if this point passes through the origin? Who can tell me? It is minus 2 comma minus 3, because अगर ये मैं पॉइंट को ओरिजिन से पास करूं तो दोनों चेंज हो जाएगा. तुम देखो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में. थर्ड से अगर वापस ओरिजिन से ये होगा तो फर्स्ट में आएगा. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि चेंज हो जाता है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा. ओरिजिन से दोनों चेंज होगा, एक्स एक्सिस से वाई चेंज होगा, वाई एक्सिस से सिंपल एक्स चेंज हो जाएगा. समझ में? सो दिस इज द कांसेप्ट. नेक्स्ट, हरिया फटाफट एक एक करके कॉपी करते जाओ और हम आगे बढ़े हम लोग. So done. Shall I move ahead? And if you have any doubt in these two topics, I'm waiting for a second. You can ask me. Yes. Anyone? कोई डाउट नहीं है? Next. Now, yes, tell me. अच्छा अच्छा. Now next, I think these things you all know, like वो मैं टॉपिक 2 में, मैं 2 के अंदर ही वो दिखना तुम लोग, 2 नंबर रिफ्लेक्शन के अंदर ही दिखना तुम लोग. ये सब चीज तुम लोग को पता है सबको. देखो मैं फिर भी मैं ये सोच के करा रहा हूँ हर एक टॉपिक दैट यू डोंट नो एनीथिंग. ओके. नाउ सपोज यू हैव एनी पॉइंट व्हिच इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस. कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं. तो एक बात बताओ तुम लोग, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट, तो बताओ तो उस पॉइंट का एक चीज चेंज होगा, एक चीज कांस्टेंट होगा. क्या कांस्टेंट होगा, क्या चेंज होगा? कोई बता सकता है? क्या सेम रहेगा, क्या चेंज होगा? बताओ. एग्जैक्टली, y कांस्टेंट होगा. वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो, बिकॉज कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं नहीं है. तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा. मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, एंड एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस, उस पॉइंट का
x coordinate will be 0 and its y coordinate will depend on the movement, location of that point on the y-axis. Clear everyone? Next. Now we'll start with the next topic, and that is number 3, distance formula. Now what is this distance formula? Just note down. I just explain you all with the help of a diagram. Now, suppose I represent 2 points on a plane. Now, you know what is the meaning of point, how to represent a point. These things are clear to you. So, suppose we have 2 points on a plane, and now we want to find out the distance between these 2 points. अब मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है. Now, सबसे पहले एक बात बताओ तुम लोग मुझे. I want everyone to answer. Listen here, everyone. If I say what is the perpendicular distance of this point from the x-axis, बताओ तो x-axis से इस point का perpendicular distance क्या है बताओ? Yes, y1, correct, absolutely correct. It is y1 unit, clear? तो इस point का x-axis से distance क्या है? It is y1 unit, clear? इस point का x-axis से distance क्या है? अगर मान लो मैं perpendicular drop करूं, तो ये क्या है? y2 है. क्लियर एवरीवन? तो ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना. अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लो a से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, किससे पैरेलल? x एक्सिस. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द distance between them, when we say distance, it is perpendicular distance. Perpendicular distance between them is same everywhere. Are you understanding my point? How do we define two parallel lines? Parallel lines को अगर तुमको कोई बोले define करने के लिए, so two lines are said to be parallel if what? The perpendicular distance between them. कहीं भी वो दो parallel lines के बीच का तुम perpendicular distance calculate करो, हर जगह perpendicular distance क्या होगा? एक ही होगा. And that's why they are parallel lines. So if this line is parallel to y-x axis, if I am drawing a line by construction, if I am drawing from a line parallel to x-axis, which means this perpendicular drop from B at, let us mark it as C. So who can tell me what is the distance between AC? Everyone must, think first. पहले सोचना, ये नहीं अंडरस्टैंड कुछ भी बग दे, x2 y2 नहीं, सोच के बोलो. रॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको गाइड करूंगा, बट सोच के बोल रही है, बट टाइम देना. तो सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है. तो बताओ तो क्या है डिस्टेंस सबको? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट ट्रैवल, यहां से तुमने ट्रैवल किया, यहां पहुंचा तुमने, तो डिस्टेंस क्या कवर किया तुमने? ठीक से बोलो. यस, इट इज x2. ओरिजिन पे तुम है, यहाँ पे खड़ा तुम, और तुम यहाँ पे ट्रैवल किया x2, तभी तो तुमने यहाँ पे फिर y2 ट्रैवल किया, तो तुमने पॉइंट B को मार्क किया. दिमाग लगाओ, तुम ओरिजिन पे था और यहाँ से तुमने x2 यूनिट ट्रैवल किए और यहाँ पे आके रुका, और फिर यहाँ से वर्टिकली y2 ट्रैवल किया. देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 तुमने बोला था कि नहीं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? इट इज x2. Now who can tell me what is the distance from here to here? Anyone? It is x1. So अगर यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? Yes, it is x2 minus x1. यहां से लेके यहां तक है y2 और यहां से लेके यहां तक y1 है, ये और ये दोनों सेम डिस्टेंस होगा. मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, तो ये और ये सेम होगा. तो ये पूरा y2 है, ये पूरा y1 है. तो बताओ तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? Done. Now see, listen here. Now you know that BC is and AC, they are perpendicular to each other, मतलब ये 90 डिग्री है. तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या है बताओ तो? हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AC. एक बात बताओ मुझे, AB. मुझे एक बात बताओ, AC का लेंथ तुमको पता है, BC का लेंथ भी पता है, और तुमको AB का लेंथ निकालना है. समझ में आया ना मेरा बात? AB का लेंथ निकालना है, तो ये 90 के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज.
तो बताओ तो हाइपोटेन्यूज का और बाकी दो साइड्स का रिलेशनशिप क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बताओ। Yes, we know that hypotenuse square by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to sum of the squares of the other two sides. What is the length of AC? It is x2 minus x1 इसका square. What is the length of BC? It is y2 minus y1 इसका square. तो अगर AB square इतना है तो फिर AB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square and don't forget giving unit. y unit अगर मान लो इस पे हम लोगों ने यूज किया है सेंटीमीटर स्केल तो हम यहाँ सेंटीमीटर यूज करेंगे, मीटर यूज किया तो मीटर यूज करेंगे, किलोमीटर यूज किया तो किलोमीटर यूज करेंगे बिकॉज ये क्या है डिस्टेंस है। नाउ दूसरा पॉइंट है AB स्क्वायर अगर इतना है तो AB क्या होगा प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस, रीजन क्या है डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड when we are finding out the length of the line segment, because what do you mean by line segment, starting और end point जिसका हो, तो उसमें जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तुम A से B तक का निकालो या B से A तक का निकालो, तो इसीलिए AB का मतलब और BA का मतलब सेम होता है। If you say AB or BA, both means the same thing. So I want everyone to copy down fast this derivation. Hurry up. And this is the formula using which we can find out the distance between 2 points on the plane whose coordinates are known to you. Hurry up, copy down. Done everyone? I hope everyone is done. Now see next. Now second one is this, थोड़ा सा copy ना फटाफट करना सब कुछ so that we can save time of it. Now second formula is the section formula. Now what is section formula? Now section formula में दो formula, एक है internal division formula, दूसरा है external division formula. So we'll start with internal division first. Yeah. So this is internal division. Now what is internal division? See, note down everyone. Suppose we have a, let's take a line segment, okay? AB, x1 comma y1, and suppose bx2 comma y2. Now this line segment is divided by a point P. When I say divided, it is not necessary that the point will lie in between AB. मतलब bisect में और divide में बहुत फर्क होता है.
डिवाइड मतलब कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, और बाइसेक्ट मतलब एकदम बीच में होगा ए और बी का, ए और बी का एकदम बीच में होगा. So suppose this point P divides this line segment in the ratio n is to n, suppose, where you must understand that what is the meaning of n and what is the meaning of n. M and n represents the ratio of AP is to PB. AP और PB का जो रेशियो है वो क्या है, n is to n है. और मान लो हम लोग को अगर ये निकालना है, सपोज हम लोग को पॉइंट P निकालना है, ठीक है. if I want to find out point P, how to find out point P, let me give you the formula first and then I'll show you the derivation. कहाँ से कैसे फॉर्मूला है, बिकॉज मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है, so why not section formula? Exactly, we can derive each and every formula. Now see, तो अगर मान लो इस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग. नाउ ये पार्ट मतलब n और यहां से यहां तक का पार्ट मतलब n है, ये रेशियो है दोनों का डिवीजन का. नाउ सी, तो अगर मान लो मुझे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये एरो देखना एक बार, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. x कोऑर्डिनेट निकालना है तो n को मैं b का x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m into x2. I'll multiply n with x coordinate of a, that is n into x1 divided by m plus n. All right, so this is the x coordinate of point P. Suppose you want to find out y coordinate of point P, it is m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. All right everyone, तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर हमको कोई बीच में एक पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं कोई फिक्स रेशियो में, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, मतलब x कोऑर्डिनेट्स, व्हेन वी से कोऑर्डिनेट्स वी आर सेइंग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ, ठीक है, तो निकालने का ये फॉर्मूला है. क्लियर. अब हम कैसे करके ये फॉर्मूला आया, लेट अस सी दिस. तो पहले कॉपी कर लो तो फटाफट ये. रेशियो है इस पोर्शन का और इस पोर्शन का रेशियो है. इतना ये दोनों का रेशियो क्या है, p डिवाइड कर रहे हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m/n रेशियो में. जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ है मान लो सपोज 20 सेंटीमीटर है, और मान लो इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना हो गया, 2:3. वैसे ही रेशियो किस रेशियो में पूरा पार्ट को हम डिवाइड करेंगे. समझ में आया ना. मान लो मेरे पास 20 रुपए और मुझे 2 आदमी को देना है, तो देना है तो किस रेशियो में देना है. सपोज अगर मान लो 20 रुपए को 2:3 रेशियो में बांटना है मुझे, इसका मतलब 5 का पूरा 20 का 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा पहला को मिलेगा, और पूरा 20 का 5 हिस्सा कर दो, उसका 3 हिस्सा बी सेकंड वाले को मिलेगा. वैसे ही पूरा लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है, वो n/n. Done everyone, copied this formula? Now let us see कि ये आया कैसे. जरूर तुम्हारे मन में होगा कि ये आया कैसे. तो let us see this part. Suppose मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक प्लेन पे, xy प्लेन पे माने. Suppose I am representing this on xy plane and the line segment is, let's take a x1 comma y1 and b x2 comma y2. Now suppose you have a point P x comma y whose ratio is m/n. ठीक है, हम समझ में आया. तो m/n मतलब इसका रेशियो है. अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला आया, लेट अस सी दिस. तो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर. इट्स माय रिक्वेस्ट दैट सबका मोबाइल जो है ना डिवाइस को म्यूट रखना. चेक योर डिवाइस एवरीवन. बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस पे.
कर दिया ड्रॉ। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर दो। लेट अस मार्क दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको सी से मार्क कर देते हैं और यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लिसन हियर एवरीवन, यहां से जो मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूंगा मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे टच करेगा, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज, मार्क दिस पॉइंट विद D, लेट्स टेक D। ये P है, ध्यान रखना ये P है, this is clear, this is P, this is A, this is C, this is D and this is B. Now don't you think that now let us draw the relationship between, derive the relationship between these two triangles. Now you have to come back to the topic of class 10, triangle chapter. देखो अगर हम ध्यान से नोट करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। डू यू एग्री और नॉट सिमिलर है? बिकॉज बताए कैसे सिमिलर है, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए जस्ट अभी किया तुम लोग 3-4-5 महीना पहले, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम लोग एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और बहुत सारा मतलब तरीका है, क्राइटेरिया। तो एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है? कोई बता सकता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे होगा? याद रखना है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और ये जो लाइन ड्रॉ किया था ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। अब बताओ मुझे एक बार, मैंने बोला ये 90 ये 90 तो तुम लोगों को तो समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 है, ये भी 90 है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे? कोई बता सकता है? हाउ दिस टू एंगल्स आर इक्वल? वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज वी फाइंड दैट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल एक दूसरे से है कि नहीं? ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? कैसे? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, आई मीन प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इट मींस दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, सी ट्रायंगल, कैन आई से, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन क्यों सिमिलर है, तुम लोगों को समझा दिया, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, अब देखो हमको पता है कि ट्रायंगल APC is similar to triangle PBD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे? बाय एंगल, वो छोड़ो, उसको हमको नहीं देखना, तुम लोगों को मैंने प्रूव करा दिया, दैट इज इनफ। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? का रेशियो बराबर होता है कि नहीं? बराबर होता है कि नहीं? दे आर प्रोपोर्शन। तो कैन आई से दैट AP डिवाइडेड बाय PB, AP divided by PB is equals to AC divided by what? AC divided by what? PD is equals to PC divided by BD. Are you understanding my point on it, everyone? This by this, देखो, is equal to this by this is equal to this by this. Simple. Angle 90, angle 90. So this by this by this, perpendicular on this base. तो ये दोनों proportion। तो अगर मान लो मुझे, अगर तुमसे पूछे हम कि what is the length of AC, तो बता सकते हो तुम लोग AC का लेंथ कितना होगा? तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है बताओ तो? यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? x। देखो यहां से लेके यहां तक का लेंथ x है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ x1 है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ x2 है। तो कोई बता सकता है कि अगर यहां से लेके यहां तक का लेंथ x2 है और ये सॉरी x है, ये रहा, और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? x माइनस x1 होगा। पूरा यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? x2 माइनस x, राइट। यहां से लेके यहां तक y2 है, देखना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक y है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? y2 माइनस y। यहां से लेके यहां तक y है और यहां से लेके यहां तक क्या है? y1 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? y माइनस y1, राइट। अब देखो हम लोग देखें कैसे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। व्हाट इज AP बाय PB? AP बाय PB इज m बाय n। देखो AP बाय PB इज m बाय n। व्हाट इज AC और PD?
ए से कितना है x माइनस x1. व्हाट इज PD? x2 माइनस x. व्हाट इज PC? PC कितना है बताओ तो, PC कहां गया, ये रहा, y माइनस y1. एंड व्हाट इज BD? y2 माइनस y. अब बहुत सिंपल, इसको इससे इक्वलाइज कर दो, इसको भी इससे इक्वलाइज कर दो. बिकॉज अगर तीन क्वांटिटीज इक्वल होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी इक्वलाइज कर सकते हैं. आई कैन से A इक्वल टू C, आई कैन से B इक्वल टू C. मैं किसी को भी किसी से इक्वलाइज कर सकता हूं. अब मैं इसको ऐसे इक्वलाइज करूंगा, m by n इक्वल्स टू x minus x1 by x2 minus x and m by n equals to y minus y1 by y2 minus y. Let us cross multiply. M into x2 minus m into x plus equals to n into x minus n into x1. हमको क्या निकालना है? x निकालना है, x और y का वैल्यू. तो x वाले टर्म को एक तरफ रख दो और बाकी को एक तरफ. ठीक है, x वाला ये रहा एक टर्म, ये रहा एक टर्म, उसको एक तरफ रख दिया, बाकी को एक तरफ. यहां से x कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा? n प्लस m. ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगा. x क्या हो जाएगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई n प्लस n. राइट एवरीवन, चेक वंस. सिमिलरली इसको भी सॉल्व करो तो देखना सॉल्व करके क्या आ जाएगा, y क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम चीज आएगी, देख लेंगे. तो क्या मिल जाएगा? m इंटू y2 plus n into y1 divided by n plus n. So this is the way how we can prove, I mean how we can derive this formula. ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूला कोई डिराइव नहीं किया जा सकता, सारा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है. अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाला एक्सटर्नल डिवीजन. कॉपी करो तो फटाफट. और मैं चाहता हूं कि मैं ये वीडियो को तुम लोगों को शेयर करूंगा और तुम लोग ये वीडियोस को अच्छे से रिवाइंड करके देख करके वापस से इसको समझना तुम लोग. बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर एक चीज का डेरिवेशन के साथ करो, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू, जिसका ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइंस क्लियर है ना, मैं बता रहा हूं 12 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं भी. नाउ किसी को कोई डाउट है? आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया. ये रहा देखो पॉइंट P, ये रहा A, ये रहा B. तो पॉइंट P मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक ही बात है, x है. ये पॉइंट है तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया. ये पॉइंट है तो ये y2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया. तो ये सब चीज एकदम क्लियर है. देखो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल 90-90, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा, प्रोपोर्शन होगा. उसके बाद मैंने बस यहाँ पे पुट करके एक बार इसको इससे सॉल्व कर दिया इक्वलाइज करके, एक बार मैंने इसको इससे इक्वलाइज करके सॉल्व कर दिया. ये रहा, मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं दिया, डायरेक्ट लिख दिया. करना क्या है? एक्स को सेपरेट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस ये चीज. डन एवरीवन, शैल आई मूव अहेड? कोई डाउट है किसी का? कॉपी. और ये कॉपी करके सिर्फ छोड़ मत देना, घर पे जाके, घर पे जब क्लास खत्म हो जाएगा इसको अच्छे से देखना और एक बार वापस से इसको खुद से लिख के प्रैक्टिस करना. पता है, तुम देखना, मैं बता रहा हूं तुमको देखो मैथ्स में अभी फर्स्ट टर्म में तुम्हारा मार्क्स आ गया 60 में 40 या जो भी जितना भी मार्क्स टोटल है, दैट इज नॉट द ग्रेट थिंग यू विल अचीव.
मैं बताऊं तुमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जब तुम मैथ्स कर रहे हो ना और अंदर जब खुशी हो, खुशी कैसे आएगा बताओ तो, जब ये पूरा चीज को डेप्थ में पढ़ोगे, तुम देखना ऐसा मैग्नेट की तरह तुम अट्रैक्ट हो जाएगा ना कि तुम उसको छोड़ेगा नहीं, और फिर तुम उसमें और डिटेल मतलब चाहेगा उसमें और अच्छे से तुम उसको करने का, तब जाके तुम सोचना कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। 20 में 20 तो बहुत तरीके से आ सकते हैं, चीटिंग करके आ सकता है, तुम जितना पढ़ा उतना आ गया उससे भी आ सकते हैं। क्या वो तरीका है? नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स। मैं 11 में मेरा स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तुम अपना लेवल ऐसा बना दो कि मतलब तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि तुम कोई भी सम्स कर पाओ, मैं कंसेप्ट बता दूं कोई सम्स कर पाओ, तो वहां पे तुमको सही रहेगा। अदरवाइज वो सम्स सम्स ये तरीका है, फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है, रट लो कर लो, रट ऐसे करके मत करो। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 3-4 चीज मैंने फॉर्मूला भी वो याद है, मैंने डिराइवेशन नहीं करा है। मैं बना करके मैं तुम लोग को एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा भेजने के लिए, तो तुम लोगों को फॉर्मूला एक बार देख लेना। कंपाउंड एंगल मैंने छोड़ा है, आई कैन रिमेंबर। सो याद रखना, सब कुछ को अगर तुम डिराइव करके करोगे अपने आप उसमें इंटरेस्ट आएगा, और उसके बाद मुझे थोड़ी ना बोलना पड़ेगा कि मार्क्स कैसे लाना, वो तो अपने आप मार्क्स आ जाएगा। सो इसीलिए मैं ये सब चीज को बोलूंगा, थोड़ा टाइम देकर के पढ़ो। इरेज कर रहा हूं मैं, यस, कोई को नहीं लिखना, ओके। Second number part is external division. तो ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या है ध्यान देने पर, सपोज यू हैव अ लाइन सेगमेंट a x1 comma y1 and b x2 comma y2. Now this line segment is externally produced. Let's say this way. This line segment is externally produced, and the new coordinate, the extended, I mean this externally produced line segment is marked with point P x comma y. Suppose this line segment is externally produced in the ratio m is to n. Now here you must understand what do you mean by this n is to n. Is m is to n means AB is to BP? No, not at all. I repeat, is this n is to n, is AB is to BP? क्या ये रेशियो n is to n रिप्रेजेंट करता है? नहीं, गलत है, ये गलत है। फिर क्या करेक्ट है? इट इज AP is to BP। समझ में आया? तो ये करेक्ट चीज है। ओके, तो ये ध्यान रखना, मैंने लिख दिया तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा। नहीं, ये AB is to BP नहीं है, ये पूरा यहां से यहां तक M पार्ट है, और ये पार्ट क्या है? N है। एक्सटर्नली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लो मुझे उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, सो इट इज m into x2 minus n into x1 divided by m minus n. All right everyone? क्या है? बहुत सिंपल है। पिछले वाले फॉर्मूला में क्या था? याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। पिछले वाले केस में क्या था? प्लस था, यहाँ पे क्या? माइनस। पिछले वाले केस में भी वही था, देखो पैटर्न वही था, क्रॉस जाओ। इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, सामने वाले से नहीं, उल्टा उसके तरफ। इसको इससे नहीं करना है, उसके इस तरफ वाले से। बस इतना याद रखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सो इट इज m into x2 minus n into x1 डिवाइड बाय m minus n। और y कोऑर्डिनेट के लिए m into y2 minus n into y1 divided by m minus n. All right everyone? और डेरिवेशन पार्ट इसका वैसे ही है, ठीक जैसे हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन किया। क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट कर लेना तुम लोग, और फिर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देना। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ कर देना यहाँ पे, और ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके बाद सेम वैसे ही, और उसके बाद कंपेयर कर देना, देखना आ जाएगा, यू गेट आंसर। समझ में आया? तो सेम वैसे ही ए बी है और पी एक्सटर्नली प्रोड्यूस किया, तो वैसे ही ऐसे दो ट्रायंगल हो जाएगा, और उसको करना आ जाएगा। तो करके एक बार देखना, मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है? तुम लोग खुद ट्राई करके देखना कि वेदर तुम लोग से आ रहा है कि नहीं ये सेम चीज। बट उससे पहले, खुद से पहले इंटरनल रिवीजन को भी ट्राई कर, कॉपी कर लो एक बार ये। और लास्ट है इसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला। Now what is midpoint formula? Note down.
Suppose you have a line segment A x1 y1, B x2 y2. Now suppose ये line segment bisect हो रहे हैं, देखो यहाँ पे bisect हो रहा है, bisect मतलब दो equal halves में divide किया जा रहा है इस पूरा को। तुम्हारे पास एक stick है, उसका length है 10 सेंटीमीटर, तो halves में break कर दो, तो each part का length क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों part का ratio निकालें तो क्या होगा 1:1। तो जब bisect होगा मतलब बीच में mid मतलब ये दोनों का बीच का point है, तो रेशियो हमेशा क्या होगा 1:1। तुम लोग एक काम करो, इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला मैंने दिया है उस जगह पे जहां पे m है वहां पे 1 पुट कर दो, और जहां पे n है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो n के जगह पे। तो तुम देखो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो तो अपनी अपनी कॉपी में फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो तो। कैन आई से दैट इट बिकम्स x1 plus x2 divided by 2 and y coordinate will be y1 plus y2 divided by 2. All right everyone, I hope you are understanding everyone what I am saying. जो अपना जो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया है उस फॉर्मूला में m के जगह पे और n के जगह पे मैं अगर 1 और 1 लगा दूं उस सेम फॉर्मूला में, तो यही आ जाएगा ना फॉर्मूला, चेक करो तो, है ना। सो कॉपी करना फटाफट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एरिया का फॉर्मूला। Done everyone. Next. अच्छा, what was the number of that? जो नंबरिंग मैंने किया था, सेक्शन फॉर्मूला का नंबरिंग क्या था? Okay. No. Midpoint formula is under सेक्शन फॉर्मूला के अंदर है 1, 2 और 3. अच्छा, ठीक है. कॉपी करो मेरा भी. Now, area of triangle. How to find out area of triangle? So suppose you have a triangle, okay? Let's take a triangle whose vertices are known to us. एक triangle है जिसका हम लोग को vertices पता है. Let's take x1, y1, x2, y2 and c x3, y3. Suppose हम लोग को एक triangle का तीनों vertices पता है हम लोग को, और इस triangle का हमको area निकालना. Area enclosed by this triangle मतलब इसके आउटर बाउंड्री से जो इनक्लोज्ड प्लेन का रीजन है उसका हम लोग को एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना. तो हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है, ध्यान देना. इस मेथड का मैंने नाम दिया है शूलेस मेथड. ओके, इस शूलेस मेथड क्या है देखना एक बार. कोऑर्डिनेट ए को पहले लिख देना, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट बी को लिख देना, फिर कोऑर्डिनेट सी को लिख देना. ना हम लोग ने स्टार्ट कहां से किया था बताओ तो, कोऑर्डिनेट ए से. उस कोऑर्डिनेट को वापस से रिपीट कर देना. ना अगर मान लो हम सपोज
इसमें अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, सपोज पहले मैं कोऑर्डिनेट बी लिख दिया x2 y2, फिर कोऑर्डिनेट सी लिख दिया x3 y3, फिर कोऑर्डिनेट ए लिख दिया x1 y1, तो हम क्या करेंगे, बी से स्टार्ट किया मैंने, तो वापस हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बी को रिपीट कर देंगे लास्ट। समझ में आया ना मेरे बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर मान लो मैंने कोऑर्डिनेट ए से स्टार्ट किया, तो वापस हम कोऑर्डिनेट ए रिपीट करेंगे, बी से स्टार्ट किया तो बी सी ए बी, बस यही चीज है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको ए से स्टार्ट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब ध्यान देना ना, व्हाई मैंने इस मेथड का नाम शूलेस मेथड लिखा है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग लेस में हम लोग शू में लेस लगाते हैं ना, वैसे ही है। देखो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, x1 y2 माइनस y1 x2, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना। समझ में आया? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस दिस इंटू दिस, माइनस y2 into x3, but make sure ये ऑर्डर मेंटेन करना, this into this minus this into this, this into this minus this into this। समझ में आया? this into this थे माइनस y3 x1, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। ये हो गया किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस पता होगा तो ऐसे एरिया निकालेंगे। ये सिंबल क्या है बताओ, तो मॉड्यूलस सिंबल। यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था तुम लोग कि अगर एक नंबर प्योरली रियल है तो उसका मॉड्यूलस में हम लोग नेगेटिव साइन को हटा के पॉजिटिव लिख देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे काम क्या है उसका? उसका काम ये है कि एरिया कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं होता है, ठीक है ना? तो अगर मान लो आंसर नेगेटिव में आता है तो उस नेगेटिव को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस पॉजिटिव बना देंगे। समझ में आया तो बात सबको? मॉड्यूलस का यही काम। नेक्स्ट, अब तुम लोग देखो सेम फॉर्मूला को तुम लोग क्लास 10 में ऐसे देखा होगा, ध्यान देना। सेम फॉर्मूला को क्लास 10 में ऐसे याद किया होगा तुम लोग, बुक में ऐसे दिया गया होगा, एनसीईआरटी बुक में। देखना इसमें क्या करना, तुम लोग x लिख देना, y माइनस वाई, ऐसे ऐसे लिख देना, फिर x लिख देना, y माइनस वाई लिख देना, फिर वापस x, y माइनस वाई लिख देना। लिख दिया तो अब देखो, अब लिखने के बाद एक सर्कल बनाना, उसको 3 एरोज देना, किस डायरेक्शन में? सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। अब यहाँ पे जो है तुम लोग स्टार्ट करना 1 से, उसके बाद 1 के बाद कौन से डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है बताओ तो 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से, 2 3 1, उसके बाद 2 के बाद 3 3 1 2। बस ये ऐसे हम याद कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है? स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो एक ही चीज है, तुम अगर देखो दोनों फॉर्मूला तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, बोथ द फॉर्मूलाज आर क्लियर। इसको कॉपी कर लो, फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। कॉपी कर लो एक बार। कुछ ऐसा अगर कुछ दिक्कत हुआ है फॉर्मूला को समझने में तो मुझे बता देना। यस, किसी को कोई दिक्कत हुआ है? स्क्वायर यूनिट इसीलिए क्योंकि एरिया को स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाएगा। मतलब अगर इसका सेगमेंट्स का लेंथ है, इसका साइड्स का लेंथ सेंटीमीटर में है दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे एरिया। एंड यू ऑल नो लाइक एरिया सेंटीमीटर में नहीं होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। कॉपी करो तो फटाफट। फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोग खुद निकाल लो, कोई इसमें मतलब ठीक है पूछना, मतलब मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे। खुद से देख लो तुम लोग, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या है, x2 y3 माइनस y2 x3।
Yes, yes, tell me. Yes, किसका doubt था? Yes. Actually, it is a very simple one. Like I just repeat once again. This method, what we do, we can simply write down half मॉड्यूलस के अंदर एक्स वाई माइनस वाई लिख देना, ठीक है। देखो फिर से प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक बार और एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर यूनिट। अब देखो ये सर्कल ड्रॉ किया, एक डायरेक्शन में मैंने 3 नंबर्स लिख दिया, 1 2 3 सिक्वेंशियली, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 के बाद क्या है डायरेक्शन में 2, उसके बाद 3, स्टार्ट किया था 1 से, अब नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 3 1, उसके बाद 3 आएगा, 3 1 2, समझ में। नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे हम लोग? एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज उसका हम लोग को वर्टिसेस दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी। इसलिए मैंने एक प्रॉपर शेप नहीं ड्रॉ की है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। यू नो क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-साइडेड फिगर, इट्स अ 4-साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगन। सो अगर मान लो हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस दिया हुआ है और मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सेम चीज, बस लास्ट में पता है क्या, इसमें ऐसे ही हम लोग शूलेस मेथड यूज करेंगे। क्या है? सपोज तुमने स्टार्ट किया ए से, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी। स्टार्ट कहां से किया था? ए से, क्योंकि ए से स्टार्ट किया था तो वापस से ए रिपीट करना, बस हो गया। अब बस उसके बाद तुम लोग मुझे फॉर्मूला बता देगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, इसमें लर्न करने का कुछ है ही नहीं, बिना देखे खुद से देखो। x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 y2 x3 प्लस x3 y4 माइनस y3 x4 प्लस x4 y1 माइनस y4 x1 स्क्वायर यूनिट। ओके, कॉपी करिए। तो मैंने कुछ बताया नहीं, बस तुम लोगों को मैंने तरीका बता दिया, और ये चीज जो मैंने लिखा है तुमको देखने का बहुत जरूरत नहीं है, खुद ही से करो एक बार। ना मैंने सोचा था कि आज ही मैं स्लोप्स ये सब समझा दूंगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले मैं इसके ऊपर 3-4 सम्स बता देता हूँ और आज का क्लास में यही खत्म कर दूंगा। ओके, तो एक बार कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, बस मैं तुम लोग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग ये सारा चीज क्लास 10 में किया था कि नहीं? हो सकता है तुम लोग डिराइव ना किया हो, अलग बात है, लेकिन सम्स तो किया था ना तुम लोग? बताओ यस और नो, टेल मी। सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज आईसीएसई, सभी को किया था। आई थिंक इवन एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी किया तुम लोग, है कि नहीं? क्योंकि मैं भी स्कूल में क्लास 10 में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है तो सिलेबस क्या था। हाँ, बट ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं था तुम्हारे सिलेबस में। तो मैं एक काम करता हूँ, सम्स नहीं करा के मैं तुम लोग को मार्क करा देता हूँ आर एस अग्रवाल से, ठीक है। आई होप एवरीवन विल बी एबल टू डू, ठीक है। तो तुम लोग करना, और नेक्स्ट क्लास में देखो मैं बता रहा हूँ, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।